So, hello everyone. This is the first video of Biomolecules Rapid Revision Notes. In this video, we discuss about carbohydrates. So, let's start the video. So, the first thing is biomolecules. What is biomolecules? Biomolecules is also called as macromolecules or giant molecules because it is a polymer of smaller molecules that is called as monomers. We have four major kind of biomolecules. The first one is carbohydrate, protein, nucleic acid and lipid. So firstly start with carbohydrates. Carbohydrates have molecular formula means general formula CnH2O whole n. The value of n can start from 1, 2, 3 and so on. Generally all carbohydrate exist in D form. According to old definition, the carbohydrates are hydrate of carbon, and according to new definition, the carbohydrate are polyhydroxyaldehyde or ketone. Means in the carbohydrate structure, we have either aldehyde group or ketone group, and the polyhydroxy chain means the number of carbon which attached with OH group. This is called carbohydrate. Generally, carbohydrates are prepared by plants. When plants do photosynthesis, they take water and carbon dioxide from atmosphere, and in presence of light, they form carbohydrate and release oxygen. And these carbohydrates are major source of energy. And on the basis of product of hydrolysis, we can further classify carbohydrate in monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. The first one, monosaccharides, is also called a monomer because we cannot further hydrolyze it. It is already present in monomeric form, and the carbohydrates comes under monosaccharides category. They generally contain 3 to 8 number of carbon. Then second one is oligosaccharides. If we hydrolyze oligosaccharides, it will break into 2 to 10 number of carbohydrates. Generally, when carbohydrate break in 2 carbohydrate further, then it is called as disaccharides. If it break in 3, it is called as trisaccharide. If it is break in 4 high carbohydrate, then it is called as tetrasaccharides and so on. For example, lactose, maltose, sucrose. So like sucrose made up of glucose and fructose. Then next is polysaccharides. Polysaccharides generally hydrolyze in more than 10 units. For example, starch and cellulose. Starch are made up of number of molecules of glucose. So then polysaccharides are also further categorized in homo and hetero. Homo means when carbohydrate hydrolyzed in different monomer, then all the monomers are same. Then it comes under homopolysaccharides. If the monomers we get on hydrolysis they are different, then they comes under heteropolysaccharides. Then the next is structure of monosaccharides. We have 3 carbon, then the structure is glyceraldehyde. If we have 4 carbon, then the possibility is erythriose and threose. If 5 number of carbon, then we have a trick to remember all the carbohydrate like ribose, arabinose, xylose and lactose, which is Raxel. If we remember the ribose structure, then easily we can also remember arabinose, xylose and lactose, because for example if we want to draw arabinose structure, so firstly the ribose structure and arabinose structure has difference in C2 carbon. So for example, this is the carbon number 1, this is the 2, this is 3, this is 4 and this is 5. So here we can see this is the ribose structure and this is arabinose structure. Only difference in C2 means second carbon. Similarly, if we want to draw xylose structure, we can similarly change the C3 carbon.
In same way, for lactose, we can change C2 and C3 carbon both. If we have 6 number of carbon, then I have given the trick to remember. इंदिरा गांधी ताल गांव में गए ऑल्टो से इलाहाबाद. सो अगर आप इसमें से किसी भी एक का स्ट्रक्चर अगर आप याद है, बाकियों का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं. जैसे कि ग्लूकोज जनरली हम लोग पढ़ते हैं तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नॉर्मली सबको याद होता है. ये मैंने साइड में दिया है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर. अगर आपको ग्लूकोज से गैलेक्टोज ड्रॉ करना है तो जो C4 कार्बन है, मीन्स ये 1 2 3 4 5 6, तो ये जो कार्बन है इसमें OH का पोजीशन आप अपोजिट कर दोगे. मीन्स अगर अभी राइट में है तो लेफ्ट हो जाएगा, अगर लेफ्ट में है तो राइट में हो जाएगा. देन अगर आपको मैनोज ड्रॉ करना है तो C2 चेंज कर देंगे. अगर आपको टैलोज ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, इधर आप इस पाथ से जा सकते हैं या फिर इस पाथ से जा सकते हैं. मीन्स पहले आप C2 का पोजीशन चेंज कर रही, देन उसके बाद C4 का पोजीशन में चेंज कर दिया तो हमें टैलोज मिल गया. इस तरीके से हम सभी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. देन 6 कार्बन जो मोनोसैकेराइड्स है उस वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक एल्डोस एंड कीटोज. एल्डोस में क्या होता है, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और कीटोज में होता है कीटोन ग्रुप. ग्लूकोज जनरली डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और फ्रक्टोज हमारा लिवो रोटेटरी होता है. देन हमारा एल्डोज में 4 कायरल सेंटर होते हैं और कीटोज में 3 कायरल सेंटर होते हैं. And what is chiral center? Chiral center is the center where all groups which is attached with carbon is different. Then it is called as chiral center. If you want to calculate number of stereoisomers, so we have formula 2n. Here n is number of chiral center. So for example, in aldose we have 4 chiral center. So we can write 2 to the power 4, which is 16. Similarly for ketose. And aldose is optically active and ketose is also optically active because they have chiral center. Then we have number of reaction for glucose and fructose, that is monosaccharides. ये जो रिएक्शंस हैं, इस रिएक्शन को यूज करके हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी डिटरमाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड. अगर हम किसी मॉलिक्यूल का एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या होगा, जितने भी उसमें OH ग्रुप हैं वो हमारा OAC ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जितने नंबर ऑफ आपके पास OH ग्रुप हैं उतने आपको CH3COH मिलेंगे. सो इससे आपको पता लगेगा कि हमारे जो स्ट्रक्चर है उसमें कितने OH ग्रुप हैं. देन सेकेंड है हमारे पास रिएक्शन विद HCN. HCN अगर आपके कंपाउंड में कोई CO ग्रुप है, आइदर वो CHO या एल्डिहाइड या कीटोन हो सकते हैं, तो वो हमारा साइनोहाइड्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक OH ग्रुप एंड एक CN में कन्वर्ट हो जाएगा. देन थर्ड है रिएक्शन विद NH2H हाइड्रोक्सिलेमाइन. इसमें भी हमारा जो CO ग्रुप है उसमें रिएक्शन होगा, वो हमारा C11NOH में कन्वर्ट होगा. इनसे हमें पता चलेगा हमारे कंपाउंड में एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट है या नहीं है. देन नेक्स्ट है रिएक्शन विथ Br2H2O. आपके पास एल्डिहाइड है कोई कंपाउंड में तो वो एसिड में कन्वर्ट होगा, और अगर कीटोन है तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा. सो इससे आप ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वो हमारा ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है. देन फिफ्थ है रिएक्शन विथ HNO3. इसमें क्या होगा, अगर CHO ग्रुप है मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप है, वो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में. 1 डिग्री हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो वो भी हमारा COH में कन्वर्ट होगा. यहाँ पर जो मिडिल में COH ग्रुप प्रेजेंट है ये हमारा 2 डिग्री है, इसलिए ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है COH में. ये हुआ हमारे ग्लूकोज के केस में. अगर हमारे पास फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज के केस में हमें 3 प्रोडक्ट मिलता है जब वो HNO3 के साथ रिएक्ट करता है. क्यों, सबसे पहले क्या होता है, जो CH2OH है, जैसे मैंने बताया कि 1 डिग्री OH होता है, वो कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक में, वो हो गया कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक में. देन यहाँ से हमारा जो OH में से जो बॉन्ड है ये यहाँ यहाँ पर COH और CO कंजुगेशन में है, इसलिए यहाँ पे से हमारा CO बॉन्ड अगर ब्रेक होगा और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा CHO में. देन CHO हमारा COH में कन्वर्ट होगा, क्योंकि मैंने पहले ऊपर ही बताया कि CO अगर आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. इस तरीके से आप फर्दर से कन्वर्ट करते रहेंगे तो आप हमारे पास 3 प्रोडक्ट मिलेगा, जिसमें से पहला है ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटामिक एसिड. देन सेकेंड है हमारे पास टार्टरिक एसिड
एंड थर्ड है हमारे पास ग्लाइकोलिक एसिड। ये तीन प्रोडक्ट हमें फ्रक्टोज को रिएक्शन करा जब हम फ्रक्टोज का रिएक्शन HNO3 के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद HI और रेड फॉस्फोरस। यहाँ पर है ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारा एनहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स आपके पास या आइदर OH ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है वो हमारा CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 या CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि हमें एक हेक्सेन स्ट्रक्चर मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज में 6 नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं। देन हमारे पास है रिएक्शन विथ NaBH4। NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसमें हमारा क्या होगा, कोई भी अगर एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है उसका रिडक्शन होकर के वो अल्कोहल बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट होगा डी सर्बिटॉल में, और डी फ्रक्टोज हमारा कन्वर्ट होगा डी सर्बिटॉल एंड डी मैनिटोल में। इसमें स्ट्रक्चर में ओनली डिफरेंस क्या है कि डी सर्बिटॉल में हमारा OH ग्रुप जो होता है राइट साइड में है, और मैनिटोल में OH ग्रुप जो हमारा है लेफ्ट साइड पे है। देन नेक्स्ट है रिएक्शन विथ NaHG एंड H2O। ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका रिएक्शन भी सेम है NaBH4 की तरह। देन कुछ हमारे पास ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट है लाइक टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट एंड बेनेडिक्ट टेस्ट। यहाँ पर इसका टॉलेंस रिएजेंट होता है हमारे पास, ये याद रख सकते हैं, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर जो है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप हमारा कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन कीटोन के साथ इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। सिमिलरली फेलिंग टेस्ट में दो रिएजेंट मिलके बनता है, फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। फेलिंग ए होता है हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, एंड फेलिंग बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो कि कलरलेस होता है। इसको हम रॉकेल सॉल्ट भी कहते हैं। यहाँ पर भी सेम रिएक्शन होता है कि एल्डिहाइड इस टेस्ट को पॉजिटिव देता है, लेकिन जो कीटोन है इस टेस्ट को निगेटिव देता है। देन नेक्स्ट है बेनेडिक्ट टेस्ट। इसमें इसका रिएजेंट है पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। ये इसमें भी सेम रिएक्शन है कि एल्डिहाइड ये टेस्ट को पॉजिटिव देगा और कीटोन इस टेस्ट को निगेटिव देता है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ग्लूकोज फ्रक्टोज और मैनोज तीनों जो है इस टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं टॉलेंस फेलिंग और बेनेडिक्ट्स के एजेंट के साथ। लेकिन फ्रक्टोज में क्या है, फ्रक्टोज में हमारा कीटोन ग्रुप होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो कीटोन है हमारा कीटोन है वो इस सारे टेस्ट निगेटिव देना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर फ्रक्टोज हमारा पॉजिटिव टेस्ट दे रहा होता है। बिकॉज जब अगर बेसिक सॉल्यूशन है, जैसे कि हमारे पास ऊपर सभी में सोडियम का सॉल्यूशन था, मीन्स बेसिक सॉल्यूशन अगर प्रेजेंट है, तो बेसिक सॉल्यूशन के प्रेजेंट में हमारे जो ग्लूकोज फ्रक्टोज और मैनोज है वो इक्विलिब्रियम में होते हैं, मीन्स उनके स्ट्रक्चर आपस में चेंज हो सकते हैं। इसलिए हमें ग्लूकोज फ्रक्टोज और मैनोज सभी पॉजिटिव टेस्ट देते हैं टॉलेंस फेलिंग और बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ। इस रीअरेंजमेंट को हम लॉवरी डी ब्रॉन वॉन किंस्टन रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। देन नेक्स्ट है रिएक्शन विथ NaIO4। NaIO4 को हम पीरियोडिक एसिड भी कहते हैं, ये हमारा इसका रिएजेंट है। इसमें क्या होता है, अगर अगर कोई अल्कोहल हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और अगर कोई कीटोन हमारे पास प्रेजेंट है तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। पीरियोडिक रिएजेंट कैसे वर्क करता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है, ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इसमें अगर पीरियोडिक एसिड के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराएं तो इसमें क्या होगा, जितने भी बॉन्ड हैं कार्बन कार्बन के वो आपस में ब्रेक होंगे, और दोनों उस बॉन्ड को ब्रेक होकर के दोनों साइड पे एक एक OH ग्रुप अटैच होगा। सो अगर हमारा CHO के साथ अटैच होगा तो हमारे पास क्या रिएक्शन बनेगा, COH और यहाँ पर OH, तो ये हमारे पास एसिड बन गया। देन अगर हमारे पास COH ग्रुप है, तो अगर इसमें हमको ये पता है कि किसी भी कंपाउंड में 3 OH ग्रुप कभी भी पॉसिबल नहीं है, कभी भी स्टेबल नहीं होता है, तो ये हमारा फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा हमारा HCOOH में। इसमें इस तरीके से हमारा H2O हमारा रिलीज हो जाएगा। देन हमारे पास ये जो चार मिडिल में हमारे पास COH ग्रुप है, इनमें ये सभी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। टर्मिनल में OH ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें क्या है कि अगर किसी कार्बन पे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ से अगर हम OH ग्रुप H2O निकल जाए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार
एल्डिहाइड में। सो इस तरीके से हमको यहाँ पर यहाँ से एक और यहाँ से चार और यहाँ से एक, मीन्स हमारे पास टोटल 5 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेंगे और एक हमें एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा। सो यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हैं, 5 कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है हमें रिएक्शन होके और एक एल्डिहाइड ग्रुप मिल रहा है ग्लूकोज का फर्दर ऑक्सीडेशन होने में। और सिमिलरली अगर अगर फ्रक्टोज का रिएक्शन हो रहा है तो हमें इसमें 2 एल्डिहाइड मिलेंगे, जो कि वापस फ्रक्टोज में 1 डिग्री OH ग्रुप होता है, एक ऊपर और एक नीचे, तो दोनों के कारण हमें 2 एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा। और जो हमारे पास एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो कीटोन में अगर 2 OH ग्रुप लगेगा तो इससे हमको यहाँ से OH रिलीज हो जाए, H2O निकल जाएगा और हमें CO2 मिलेगा, मीन्स H2O और CO2 हमें मिलेगा कीटोन ग्रुप के कारण। और जो मिडिल में तीन हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, उसके कारण हमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलेंगे। देन नेक्स्ट है हमारे पास ओसाजोन का रिएक्शन। ओसाजोन में रिएजेंट हम यूज करते हैं 3 फिनाइल हाइड्रोजन। इसमें जनरली रिएक्शन होता है C1 और C2 कार्बन पे, उसके अलावा जो बाकी कार्बन उस पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। अगर C1 और C2 पोजीशन पे अगर CO ग्रुप या COH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो हमारा हाइड्रोजोन में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स ओसाजोन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन हमारे पास है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज। तीनों हमें सेम ओसाजोन प्रोडक्ट देते हैं, क्योंकि सिर्फ यही तीनों ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जिनमें C1 और C2 पोजीशन में डिफरेंस होता है। बाकी उसके बाद जो C3 से लेकर के C6 नंबर ऑफ कार्बन है, सारे कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम टाइप का होता है, सिर्फ C1 और C2 पे डिफरेंट होते हैं, इसलिए ये तीन हमेशा सेम ओसाजोन प्रोडक्ट देते हैं। इस तरीके से हम सभी में डिफरेंस भी पता कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है किल्सानी फिशर सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता है। वो कैसे इंक्रीज होता है, यहाँ पर मैकेनिज्म है हमारे पास कोई भी एक एल्डिहाइड ग्रुप है, HCN का रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो, साइनोहाइड्रीन में कन्वर्ट होगा, एक OH और एक CN ऐड हुआ। देन अगर इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हमारा CN ग्रुप जो है हमारा COOH में, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। देन उसका हम रिडक्शन कराएंगे तो वो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था वो हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है डी अरेबिनोज का, डी मैनोज एंड डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन। डी अरेबिनोज में 5 कार्बन होते हैं, बट डी मैनोज और डी ग्लूकोज में 6 नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। देन नेक्स्ट है रफ डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन से पता चल रहा है डिग्रेड हो रहा है, मीन्स नंबर ऑफ कार्बन में डिक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास यहाँ पर CHO ग्रुप है, CHO क्या है, Br2 और H2 के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो गया COOH में, मीन्स ऑक्सीडेशन हुआ है। देन हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास H निकल के यहाँ पर Ca+2 ग्रुप आया। देन एक रिएजेंट है फेंटॉन्स रिएजेंट, जिसमें कि आयरन टेट्राएसिटेट है एंड H2O2। इसके प्रेजेंस में हमारा ये जो कंप्लीट ग्रुप है, मीन्स जो COO माइनस Ca+2 प्लस ये जो कार्बन है जिसमें OH और H हटा जाए, ये कंप्लीट कन्वर्ट हो जाता है हमारा CHO में। मीन्स यहाँ से ये जो ग्रुप है CO माइनस Ca+2, ये ग्रुप निकल गया है और वो हमारा सिर्फ CHO ग्रुप यहाँ पे बच रहा है। देन हमारे पास अल्फा बीटा कॉन्फ़िगरेशन, ये हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है हमारे पास तो उसमें जो फर्स्ट कार्बन है वो डिसाइड करता है कि हमारा अल्फा कंपाउंड है या बीटा कॉन्फ़िगरेशन है। सो अगर अल्फा कॉन्फ़िगरेशन है तो हमारे पास OH होगा हमारे पास राइट साइड में, और अगर बीटा कॉन्फ़िगरेशन है तो OH हमारा होगा लेफ्ट साइड में। देन वी हैव साइक्लिक फॉर्म ऑफ एल्डोज एंड कीटोज। हमारे पास ग्लूकोज है, इसको हम साइक्लिक फॉर्म में फिशर प्रोजेक्शन, होवर्थ प्रोजेक्शन एंड चेयर प्रोजेक्शन में लिख सकते हैं। हमारा फिशर प्रोजेक्शन है अल्फा डी ग्लूकोपैरानोज और बीटा डी ग्लूकोपैरानोज। इसमें अल्फा और बीटा सिर्फ C1 जो कार्बन है, मस्त फर्स्ट कार्बन है, उसके कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस के कारण हमारे पास ये अल्फा और बीटा नेम दिया, जिसमें मैंने पहले ऊपर बताया। इसमें OH हमारा राइट साइड में तो हमारा अल्फा हो गया, अगर OH यहाँ पर लेफ्ट साइड में है तो बीटा डी ग्लूकोपैरानोज हो गया। देन हमारा है होवार्थ प्रोजेक्शन। कोई भी ग्रुप हमारे स्ट्रक्चर में राइट साइड पे प्रेजेंट है तो वो बिलो चले जाते हैं, अगर लेफ्ट साइड पे वो हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ होगा।
जैसे कि फर्स्ट कार्बन, हम अगर अल्फा डी ग्लूकोपैरानोज देखें तो जो फर्स्ट कार्बन है उसमें OH हमारा कहाँ है, राइट साइड पे। राइट साइड पे तो ये हमारा नीचे चला गया, मीन्स हम अपने स्ट्रक्चर को से क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया है हमने। सो जितने भी राइट साइड पे थे नीचे चले गए और जो लेफ्ट साइड पे थे ऊपर है। देन ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज का हमारे पास ये हॉवर्थ प्रोजेक्शन है, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। देन नेक्स्ट है हम डी एंड एल फॉर्म डिसाइड बाय फिफ्थ कार्बन, मीन्स हमारा डी और जो एल है आइदर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है, वो डिसाइड होता है फिफ्थ कार्बन से। फिफ्थ कार्बन पे अगर OH हमारा राइट साइड पे है तो वो डी फॉर्म होगा, और अगर OH लेफ्ट साइड पे तो एल फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फिफ्थ कार्बन फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज में ये हमारा फिफ्थ कार्बन है, तो इस कार्बन पे हमारा जो OH है राइट साइड पे है, मीन्स ये हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। अगर ये OH अपोजिट साइड में होता, लेफ्ट में होता ये, तो लीवो रोटेटरी होता। और हमारा ग्लूकोज, पहले हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि ग्लूकोज हमारा डी और एल दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जनरली ग्लूकोज हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है और फ्रक्टोज हमारा लीवो रोटेटरी होता है। देन नेक्स्ट है एनोमर्स। एनोमर्स क्या होता है, इनमें इनमें डिफरेंस होता है C1 पोजीशन पे। अगर C1 पोजीशन में डिफरेंस है मीन्स अल्फा बीटा अगर है तो हमारा एनोमर्स होगा। एपीमर्स क्या है, C1 के अलावा कोई भी पोजीशन अलग है, आइदर C2 C3 C4 C5 C6, कोई भी पोजीशन अगर डिफरेंट है तो वो एपीमर्स में आएंगे। जैसे कि हमने डी और एल में देखा था, उसमें C5 में डिफरेंस है तो वो हमारा एपीमर्स होगा। देन हमारे पास है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या, चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, मीन्स इसमें ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज आता है, जैसे कि अल्फा से बीटा कन्वर्ट हुआ। तो जब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब अल्फा से बीटा में कन्वर्ट हो रहा होता है तो एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे होता है ओपन स्ट्रक्चर्स। मीन नॉर्मली ग्लूकोज हमारे पास साइक्लिक फॉर्म में है, लेकिन उसका हम ओपन स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो वो हम पता करते हैं म्यूटा रोटेशन से। म्यूटा रोटेशन में क्या होता है कि हमारा जो ग्लूकोज जब अल्फा से बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है तो कुछ स्मॉल टाइम के लिए हमारे पास वो ओपन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जिससे हम डिटरमाइन करते हैं कि ग्लूकोज हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। देन स्टेबिलिटी देखें तो जनरली बीटा फॉर्म की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है अल्फा फॉर्म से। देख सकते हैं ये हमारे पास अल्फा फॉर्म है ग्लूकोज का और ये हमारे पास बीटा फॉर्म है ग्लूकोज का। सो अल्फा फॉर्म में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन OH का जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है इस पे हमारा अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, जिसके कारण इस पोजीशन पे हमारे पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, जो से हम कहते हैं एनामोरिक इफेक्ट। देन इन केस ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन और जो इस ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है इसके बीच में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस कारण से बीटा फॉर्म हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एनामोरिक इफेक्ट में हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा डोमिनेटिंग है। इस कारण से हमारा बीटा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है अल्फा फॉर्म की कंपैरिजन में। देन नेक्स्ट है रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, हेमी एसिटल फॉर्म में, नॉन रिड्यूसिंग होता है एसिटल फॉर्म में। जितने भी मोनोसेकेराइड्स हैं और ओलिगोसेकेराइड्स हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स के अंदर आते हैं। जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हैं वो हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंडर में आते हैं। यहाँ पर जो रिड्यूसिंग शुगर है वो पॉजिटिव टॉलरेंस और फीलिंग देते हैं क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो हमारा नेगेटिव देते हैं टॉलरेंस और फीलिंग टेस्ट, क्योंकि हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स हैं वो मोनोसेकेराइड्स को मिल करके ही बनते हैं। लेकिन जो मोनोसेकेराइड में जो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप था, पॉलीसेकेराइड्स में वो हमारा एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जिस कारण से हमारे पास जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है पॉलीसेकेराइड्स में, इसलिए ये सारे कंपाउंड मीन्स नॉन रिड्यूसिंग शुगर नेगेटिव टॉलरेंस और फीलिंग टेस्ट देते हैं। देन एग्जाम्पल हमारे पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज रिड्यूसिंग शुगर में, और नॉन रिड्यूसिंग में सुक्रोज एंड ट्रेहेलोज। देन वी हैव डाइसैकेराइड्स, 3 टाइप्स ऑफ सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होता है तो वो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। इसमें 1 to ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। लैक्टोज में क्या है, ये हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज में कन्वर्ट होगा हाइड्रोलिसिस में। माल्टोज हमारा 2 मोल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज देता है।
और इसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, और लैक्टोज में बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। और सुक्रोज हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, लैक्टोज और माल्टोज हमारा रिड्यूसिंग शुगर है। देन हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल है स्टार्च एंड सेलुलोज। जब स्टार्च हमारा अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है और सेलुलोज हमारा बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। स्टार्च को हम फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में। एमाइलोज में क्या होता है, वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट है, एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल है। एमाइलोज में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है और एमाइलोपेक्टिन में 1,4 एंड 1,6 दोनों ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। देन एमाइलोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और एमाइलोपेक्टिन भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये वीडियो यहीं पर एंड होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स। थैंक यू।